اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے میں، آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کر رہے ہیں اپنا سبق نمبر 9 اے اور بی۔ ہم حصہ اول میں قرآن کے ذریعے سیکھتے ہیں اور حصہ 2 میں ہم انشاءاللہ آج بڑی مزے کی چیز ہونے والی ہے۔ ہم نے اسماء سیکھ لیے اور ہم نے سیکھا ہے ابھی تک حروف سیکھے ہیں۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہیں افعال۔ تو اب آپ نے ریویژن کی کلاسز بھی نہیں اسکپ کرنی، اور انشاءاللہ آپ نے یہ جو اپنی کلاسز ہیں جو آپ کی ریگولر کلاسز، اس میں بھی آپ نے انشاءاللہ ضرور بالضرور اپنی پریزنس کو یقینی بنانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پچھلے سبق سے ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ چلیے جی، ترجمہ کیجیے اعوذ۔ کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ بی میں پناہ میں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سے آپ اس کو ذرا کر لیجیے گا چینج۔ جی اچھا، یہ بھی ہم انشاءاللہ اب یہ جو ہم افعال شروع کریں گے اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جب 2 ترجمے بناتے ہیں یہ کیسے بن جاتے ہیں۔ ہم بنا دیتے ہیں اس کو مستقبل کا بھی اور حال کا بھی، تو اس کو بھی انشاءاللہ جب افعال شروع ہو رہے ہیں تو یہ اب اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب نیکسٹ دیکھیے گا، نیکسٹ ہے ہمارا رحیم کا معنی بتائیے گا۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ جی مسلسل رحم کرنے والا۔ جی اچھا، آپ ایسا کریں حفصہ، اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کیجیے، میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیجیے۔ حفصہ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ جی جی میں سن رہی ہوں۔ ہاں، آپ اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کیجیے گا یہ والا، ہاں یہ جی جو کوشچن ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو لیپ ہاں ٹاپ جی، آن کرتی ہوں۔ آپ کر لیں۔ سلام علیکم کا ترجمہ کیجیے۔ رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر یا سلامتی ہو مجھ پہ، کون سا آپشن ہوگا اس کا؟ سلامتی ہو آپ سب پر۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا آ جاتا ہے اس کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آگے جاتے ہیں۔ آج کا سبق ٹیچر آ کے پڑھائیں گی ہمیں، تو ویسے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس میں پڑھنا کیا ہم نے۔ اس میں ہم نے درود پڑھنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے، پھر گرامر کے اندر ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ سا آج پڑھنا ہے فعل ماضی، فعل، جعل، فتح۔ یہ بڑے مزے کا آگے سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نکات تعلیم یا شوق، یہ سب پڑھیں گے۔ اور اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اس میں 9 نئے الفاظ آئے ہیں جو قرآن میں دیکھیں صرف 9 آئے ہیں، لیکن اس کی اکرنس کتنی ہے؟ 390 ٹائمز وہ آئے ہیں۔ تو اور یہ ہم لوگوں کی انشاءاللہ جو بار ہوگی وہ آج دیکھیں آلموسٹ 30,000 تک پہنچنے والی ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگوں کا مڈ بھی آ رہا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو سسٹر اقدس ذرا آپ چیٹ میں دیکھیے گا، آپ کو میسج کیا ہے۔ اچھا، میں اس کو ذرا پاز کروں ریکارڈنگ کو۔ ہاں جی، ریکارڈنگ ذرا پاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سبق میں ہم نے سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہم نماز میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ ایکچولی ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے۔ گرامر میں آج ہم نے سیکھنا ہے فعل ماضی۔ ہم جو اپنی ایک سلائیڈ دیکھتے تھے کہ افعال کی 3 اقسام ہیں، لفظ یا کلمے کی، تو اس میں ہم اسم اور حرف کے بارے میں ابھی تک جو جتنا بھی پڑھ رہے تھے، وہ آج ہم وہ جو درمیان کی ایک سمجھتے لائن کو چھوڑ رہے تھے یا ایک جو چیز ہم سکپ کر رہے تھے وہ تھے افعال۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے افعال سیکھنے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو فعل، جعل، فتح، اس ٹائپ کے الفاظ افعال کتنی مرتبہ یوز ہوتے ہیں، اور ایک فعل سے جب ہم اس کے مکمل ٹیبل تک پہنچیں گے انشاءاللہ اپنے 18ویں لیسن تک، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمیں اس میں اسماء، افعال، واحد، جمع، مذکر، مؤنث تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ نکات تعلیم یا شوق ویڈیو کا
اور اس سبق میں 9 نئے الفاظ ہوں گے جو قرآن مجید میں 390 مرتبہ آئے ہیں الحمدللہ. اور اگر ہم اس کا گرامر پارٹ بھی اس میں شامل کریں تو 102 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو 27,926 بار قرآن مجید میں آئے ہیں. یہ ہماری بار آپ کو افسا سسٹر نے بھی دکھائی. الحمدللہ 30,000 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. پھول آپ کا ہوا اور یہ جو آپ کی ہے 7 ہوم ورک. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ آپ نے 2 کام تلاوت کے کرنے یا ہوم ورکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تلاوت آپ نے کیسے کرنی ہے, مصحف سے دیکھ کر لیجئے, جو زبانی ہے اسے کر لیجئے, جو آپ کے پاس بک ہے یا پی ڈی ایف ہے اس کو دیکھ کے جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ریوائز کیجئے, یا یہ جو ہمارا ووکیبلری کارڈ ہے اس سے آپ دیکھیں جتنا ہم پڑھ چکے ہیں. گرامر پارٹ, قرآنک پارٹ, وہ تمام اس میں مختصر سا کر کے بتا دیا گیا ہے. اپنے ساتھی سے سوال کریں, گھر میں ساتھی موجود ہے تو الحمدللہ اس سے بہترین بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح سے نماز میں کوشش کیجئے مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے. آپ کو منتخب کیا گیا, آپ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. اور ہماری جو روزانہ کی دعائیں ہیں اس میں شامل رکھیے. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہمارے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے دونوں میں ہماری مدد فرما دیں انشاءاللہ, آمین. چلیے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہزاروں میل دور مسلمان اگر ہم آج ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ دور دراز کہیں کسی علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کہیں اسلام کو پھیلانے کی کوشش میں انہوں نے اس سارے جو سفر میں جتنی مصائب, پریشانیاں, تکلیفوں کا جو ایک دور دیکھا, ہم سیرت طیبہ کی کتابوں میں اکثر پڑھتے بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے اسی کسی قربانی کے نتیجے میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان میں سے کوئی مسلمان ہوئے, پھر وہ نسل در نسل ہم لوگ بائی چانس مسلمان بن گئے. اب ہم نے بائی چانس سے بائی چوائس مسلمان بننے کا یہ سفر اس طرح سے شروع کیا کہ ہم نے قرآن کو لفظ بلفظ سیکھنا شروع کیا ہے. کہیے الحمدللہ. دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اسی قبیلہ سے پہنچی ہو. اسی طرح کی بات کو سوچتے ہوئے محسوس کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اس قربانی کا ہم بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلا نہیں سکتے, کوئی گفٹ ان کو دے نہیں سکتے, تو صرف اور صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. تو جو دعا, بہترین دعاؤں میں یہ جو دعا ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود بھیجتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کے فوائد کے اجر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ہی والا ہے. یعنی ہم دعا کریں یا نہ کریں, ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے ہی اعزاز ہے. دعا کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے تو اس میں خود ہمارے لیے بھی دعا شامل ہے. یہ ابھی ہم جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو سن کر, یہ سمجھ کر بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم بھی کیسے ان دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. اور یہ کوئی خود سے گڑی یا بنائی ہوئی بات نہیں ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اسی لیے اس درود پڑھنے کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں درود ہے ہمارا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دیکھیے گا کہ اللہم اے اللہ, یہ ہم نے شاید پہلے بھی اس پہ بتایا تھا یا ہم نے اس بات کی تھی کہ اللہم اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے, اللہم اس کو وہ والا ہم والا نہیں بنانا. ٹھیک ہے, یہ اللہم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ایک نام, اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی یہ دعاؤں میں اکثر قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اے اللہ صلی, رحمت بیج, علی پر, محمد, محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آج سے ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آتے ہیں, اسی بات کو آپ نے ذرا نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے, اللہم اے اللہ, اس طرح سے قرآن مجید میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام
बताया गया, लिया गया या लिखा गया है। स्वल्ली इंशाल्लाह ये जो हम अफ़आल शुरू कर रहे हैं, जब हम फेल माजी से मुदारे से फेल अमर पर जाएंगे तो उसमें फिर ये इसका थोड़ा सा इशारा भी चेंज होगा। स्वल्ली, इसमें हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, इसमें हम हुक्म भी देंगे, इसमें दुआ भी होगी कि तू रहमत भेज। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह तू रहमत भेज। अब आप देखिए, हमने कल एक छोटी सी हरूफ जर के बदलने की मिसाल देखी थी कि स्वल्ली का मतलब वैसे है नमाज पढ़, ठीक है। लेकिन अब ये देखें जो इसके बाद ली है, ली हमने कहा था लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो अब है फस्वल्ली ली रब्बी का, पस स्वल्ली नमाज पढ़, ली लिए, रब्बी का तू अपने रब की, वनहर और कुर्बानी कीजिए। ठीक है, कि बस अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। लेकिन यही जब हम देखेंगे स्वल्ली अला, यानी कि लफ्ज वही है लेकिन अला की वजह से, हरूफ जर की वजह से बदल गया हरूफ जर, माना भी बदल गया। अब इस स्वल्ली का मतलब हो गया रहमत भेज। ठीक है, यानी कि अब हमने देखना ए अल्लाह तू रहमत भेज। हमने ये नहीं कहना कि अल्लाह तू नमाज पढ़, ए अल्लाह तू रहमत भेज। अला, अला उसी तरह से अस्सलामु अलैकुम में जो हमने, अब ये जो इसके ऊपर खड़ी जबर है, ये देखिएगा, ये खड़ी जबर है, इसको जब हम जबर के साथ या लगाएंगे तो ये जो इसकी या है ये जाहिर हो जाती है। ठीक है, अलई, जब हम इसको या के वैसे भी साउंड जो पढ़ते हैं वो उसमें थोड़ा सा ऐसा साउंड आ जाता है, अलई। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, जैसे अलैहि अलैहिम, इसी तरह से अलई का अलैया और अलैकुम वही वाला अला है, और अलैना, अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम लिया जाए तो जरूर बिल जरूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होंगे, लेकिन ये याद दहानी जितनी बार भी की जाए कम है। व और वाह हम बार बार पढ़ चुके, अला भी पढ़ चुके। अब आगे बात है आल की। आली, इसका जो आम एक हम रवा तर्जमा या शुरू से हमने सीखा तर्जमा वो था आल। अब आल में देखिए, आल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले भी हैं और एतबा करने वाले भी हैं। एतबा करने वाले कौन है? जो हम सब उम्मत मुस्लिम हैं, ठीक हो गया। और इसमें आप देखिए अरबी जुबान में अहल खानदान वालों को कहते हैं और आल में दोनों लोग शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले भी हैं और एतबा करने वाले भी हैं। अच्छा, अहल का लफ्ज़ तो हमने ये उर्दू में भी देखा है ना, अहबमा अहलो अयाल वगैरह के, जब खास तौर पे ये शादियों में कार्ड शार्ट बांटे जाते हैं तो बमा अहलो अयाल लिखा जाता है, जिसको हम अहलो अयाल भी पढ़ देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो आल का लफ्ज़ ये कुरान मजीद में 26 मरतबा यूज हुआ। अब आपने इन दोनों का फर्क भी अपने जहन में रखना, याद रखना, और ये आपकी वोकैबुलरी में आज एक नया लफ्ज़ है कि आल, आल के दो माना है। जैसे हमने दो माना सीखे अलहम्द के, जैसे हमने दो माना सीखे दीन के, जैसे हमने स्वल्ली में देखा ली और अला से बदल गया मतलब, इसी तरह से अब आपने याद रखना है कि आल में खानदान वाले और एतबा करने वाले दोनों शामिल हैं। अब आप देखिए स्वल्ली अला का मानी क्या है कि ए अल्लाह, अब आगे आप उनके जो उनके बारे में हम जो दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहरबान हो जा, ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद कर और उनके दर्जात को बुलंद कर। अब आप देखिए ये जो सारी दुआएं लिखी हैं ये अब हम नहीं भी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अपनी रहमतों की बारिश की, अल्लाह ताला उन पर मेहरबान है, उनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में भी बता दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी कि ए नबी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपका नाम बुलंद है। यानी कि हमारे करने ना करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसका फायदा हमें है, सवाब भी मिलेगा। और ये जो हम इस यकीन के साथ पढ़ेंगे और इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में जो हम आज मुसलमान हैं, तो उसका हम और तरह से तो बदला नहीं दे सकते। तो दरूद शरीफ इंशाल्लाह हम पढ़ते रहेंगे। आल के दो माना आपने देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुतहरात इत्तबा करने वाले में दूसरा मानी ले तो हम भी इस दुआ में शामिल हो गए। यानी कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। अब आल में हम भी शामिल हैं तो और भी आप शौक से और खुशू से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तेरे नबी ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, अब हमारे बस में नहीं कि हम इसका बदला दें, हम बदला भी क्या ही दे सकते हैं, यानी कि बदला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही देने वाले हैं। तो बस हम दुआ कर सकते हैं, बस अपनी दुआओं को खालिस कीजिए। आपका टाइम है, एक दफा इसको पढ़ लीजिए।
ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں سے کافی کبھی ہم نے پڑھا نہیں. چلیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کما. کما جیسے سلیتا. اب یہ جو سلیتا ہے نا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے, اگر آپ پاس پینسل وغیرہ ہے تو لکھ لیجئے اپنے پاس. آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ سلیتا میں انتا کی طرح سے تا جو چھپا ہوا ہے وہ ہم نے کیسے بنایا اور اس کا ترجمہ کیسے بنا. کما صلیتا بیجی رحمتون علی پر ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اتباع کرنے والوں پر بھی اور خاندان والوں پر بھی. اب یہ لفظ جو ہے نا کا, اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. اسی طرح سے یہ جو کما ہے اس کا مطلب بھی جیسے ہے. اب آپ نے کما کے ٹکڑے نہیں کرنے, اب آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ یہ جو کا اس کو الگ کر دیں, کیونکہ یہ جو کا الگ سے جو یوز ہوا جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ ضمائر میں پڑھا ہے, اور اس سے اس کا سے اس طرح سے لفظ شروع نہیں ہوتا, وہ اینڈ پہ تھا. وہ جو ضمائر تھے ہم نے اس کے ساتھ اس کے پیچھے اسما بھی جوڑے تھے اور اس کے پیچھے ہم نے جڑ جڑ کر جو چیزیں آئی تھی وہ حروف تھے. اب یہ جو کما ہے اس میں ما اور کا کو الگ نہیں کرنا, آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کما ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. اس کا مطلب ہے جیسے صلی نماز پڑھ, اور اسی طرح سے صلی علی رحمت بھیج, اور اسی طرح جو صلیتا ہے یہ بھی ہمارا آج ہم فعل ماضی کریں گے تو اس میں اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں گے. ابراہیم علیہ السلام پر ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہیں, اور یہ جو قربانی والا سارا سلسلہ ہم عید پر یہ جو سارے ان کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں اور الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے ہم ان کو جانتے ہیں. اور 69 ٹائم بار ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. اب جو دعا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی وہی ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, لیکن اصل میں ہم پہلے دعا جو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ دنیا کے تمام مسلمان, عیسائی, یہودی سب انہیں نبی مانتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. جو عیسائی ہیں وہ اس بات کو مانتے نہیں, حالانکہ ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے, بتایا گیا, ہر جو آسمانی کتاب 4 کتابیں اتری, صحیفے اترے, ہر بات ہر کتاب میں ہر جگہ پر بتایا گیا کہ ایک ایسے نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ کر دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں مانتے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی, یہودی اور دیگر تمام مذاہب والے بھی مانتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ, تمام مذاہب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں, اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے, خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں, ٹھیک ہو کیا جی. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں. یہ بھی دعاؤں میں ایک بڑی خاص دعا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ, تمام مذاہب, دیگر مذاہب جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے آخری نبی مانیں. آپ کا ٹائم ہے, ایک بار پڑھ لیجیے اسے. چلیے جی مجھے بتائیے گا, جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمت بھیجے گا؟ 10 مرتبہ. الحمدللہ. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں بھی. اس میں یہ کہ ساری چیزیں آ جائیں گی, ہم سیرت رسول کو بھی پڑھیں گے, دعا کے انداز میں پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اب یہ جو ہمارا آخری فقرہ ہے اس کا درود شریف کے پہلے حصے کا, وہ ہے انا کا. انا کا آپ پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں, انا ہوں, انا ہوں, انا کا, انی اور انا کم, انانا, ٹھیک ہے. یہ وہی انا کا, بے شک تو حمید مجید. حمید جو ہے تعریف کے قابل, جو ہم نے کیا تھا شکر, تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کی, حمید اسی سے نکلا, ٹھیک ہے. کیا مجید بزرگی والا, جیسے ہوتا ہے جد, جد امجد, اباؤ اجداد, وہ بھی بڑوں کو کہتے ہیں نا اباؤ اجداد کی جب بات ہوتی ہے تو یہ اسی بزرگی والا ہے. انا یقیناً, یہ جو ہم نے کہا تھا ان اور انا, ٹھیک ہے, کہ ان کا اگر تھا
इन्ना का था बेशक। इसी तरह से अन और अन्ना दोनों का मतलब के, और शद वाला जो अन्ना था उसमें ये कि एक माना बेशक का भी आ जाता है। अब ये जो इसमें यकीन पाया जाता है, ठीक है, इन्ना बेशक यकीनन का तू, हमद से हमदू से निकला हमीदुन तारीफ और शुक्र, यानी कि तारीफ के काबिल। 17 मरतबा कुरान मजीद में ये लफ्ज इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है। अब आप देखिएगा उर्दू में जैसे हम कहते हैं वालिद माजिद, जद्दे अमजद, ये मजीद का आप देख लीजिए, बुजुर्गी वाला जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई, कमाल यानी कि परफेक्शन के दर्जा पर हासिल हो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा कोई बुजुर्गी वाला हो ही नहीं सकता, कोई अजमत वाला हो ही नहीं सकता, ऐसी बड़ाई कि जिसको फना नहीं है, जिसको हमेशा के लिए बका है। इसमें देखिए कि अगर हम भूखे हो और हमारे किसी दोस्त को इस बात का पता चले और वो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक ही भेज दे, भेज सकता है वैसे कोई, लेकिन चले ट्रक ना भी सही, वो चले हमें कुछ खाना भेज दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए, हम दिल से खुश होकर तारीफ करेंगे। तो ये तो छोटी सी मिसाल है, अल्लाह ताला के लिए तो बेहतरीन मिसालें मौजूद है। मैं तो कहती सिर्फ अपने उठने, अपने जो जागने का अमल है उस पर भी अब गौर कर ले तो शुक्र तो वहीं से शुरू हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कि ये जो सारी दुआएं भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, कि पहले सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। अब हम अगर ईसाई खानदान में पैदा हो जाते, यहूदी में, किसी में भी, तो क्या करना था हमने, वही जो जिस तरह से नस्ल दर नस्ल वो लोग कर रहे हैं अपने काम, या जो भी उनके जिस तरह से अकायद हैं उसी पर ही कायम है। या अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा जिसने हम तक तेरी हर बात को पहुंचाया, हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और बेशक तू खूब तारीफ के काबिल है। इस तरह से जब हम अल्लाह ताला की दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और इस तरह से इस दुरूद शरीफ को समझ कर जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसका आपको ये कि नमाज में खुशबू भी पैदा होगा और हमें पता चलेगा कि आज तक हम जो दुरूद पढ़ते रहे हैं उसके पीछे हम मतलब जो हमारी दुआएं थी या इसके पीछे वो क्या बातें थी जिसका हम इकरार अल्लाह रब्बुल इज्जत से कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलालो अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसीलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है, कि ये किसी इंसान का काम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कर सकते हैं। इनके रोल को समझने के बाद आप ये देखिए कि उनको एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, तो हमें इनका शागिर्द होना चाहिए। क्या वो ता कयामत तक के नबी नहीं है? बिल्कुल हैं। क्या उनका किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम उनकी वफात के बाद खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मदद फरमा मेरी कि मैं आपका शागिर्द बनूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आ जाते हैं, एहतिसाब में कितना अपना वक्त सर्व करता हूँ कुरान और हदीस को पढ़ने में, या मैं कहती हूँ कि मैं मसरूफ हूँ, ठीक है। ये आप ये जो कॉमन सीगे यूज की जाते हैं ना मुज़क्कर के, तो आप इसको बदल के इसको उर्दू में कर लिया करें। प्लान एक मखसूस वक्त में कुरान और हदीस पढ़ने के लिए कोई भी क्लास शुरू करें, जैसे आपने हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन की, जहां भी आपको लगे कि आपका टाइम ठीक है या ये जो आपका इसकी मुद्दत है कोर्स वगैरह की आपके लिए बिल्कुल मौजूद है, तो बिल्कुल जरूर चाहिए, कोशिश कीजिए। तबलीग कोशिश करें कि हर मुमकिन हद तक इनकी तालीम यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचा दें। चलिए, अब आप एक मिनट पढ़ लीजिए। चलिए, इन्नाहु हमीदुम मजीद। अब आप देखिएगा इन्ना का और इन्नाहु, अब आपने जो इसका तर्जुमा करना है इस हिसाब से करना है। इन्नाहु हमीदुम मजीद, ए ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि ये जो अब हमारा बाकी दूसरा पार्ट है, इसमें ये देखिए अल्लाहुम्मा वही अल्फाज इसी तरह से आए। अब ये जो अगला लफ्ज है हमारे पास बारिक, अब आपने इसको लका की तरह, इन्ना का की तरह, या फिर जैसे जितने भी हमने टेबल किए हैं इंदा का, उसकी तरह से बारिक से बार और का को अलग नहीं करना। अलग करेंगे तो बारीक भी लफ्ज ही नहीं बनता, ठीक है। बारिक
बरकत अता फरमा, जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, इसी तरह से मुबारक की तरह ये भी एक लफ्ज है बारिक, इसका माना है बरकत अता फरमा। ये उसी तरह से फेल अमर में आ जाएगा। इंशाल्लाह अफ़आल सीखेंगे तो ये जो अल्फाज हैं इनको हम फिर सीखेंगे कि इनके कैसे बिल्डअप होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे, इसको हम अलग करेंगे और किस तरह से समझेंगे कि ये अल्फाज किस तरह से बने। बाकी आप देखिए अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकी तमाम अल्फाज वही हैं। तो हम देख लेते हैं दुरूद के पहले से में सलात की दुआ हुई, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, सलात में बरकत भी शामिल है। और सलात की दुआ करने के बाद यानी कि रहमत की दुआ करने के बाद दोबारा से फिर बरकत की दुआ की गई। ये इस वजह से कि दुआ में बार बार हम मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात को शामिल करते हैं और इसी तरह से पेश किया जाता है कि आप दुआ को किस किस तरह से किस अंदाज में पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को याद कीजिए और दिल से उनकी बरकत की दुआ कीजिए। अब बरकत के जो माना ये आपको जैसे क्विज में अगर आ जाता है सवाल या आपके वर्क बुक में है तो आपने इसको याद भी रखना है, इसको एज अ लेसन भी याद रखिए और इसको वैसे भी याद रखिए कि इसके माना क्या क्या हो सकते हैं। बरकत के मानी है खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, यानी कि सिर्फ अता होना काफी नहीं, नेमतों का हमेशा रहना और रहना भी काफी नहीं, उसमें बराबर इजाफा होता रहना और तरक्की होना। ये दुनियावी भी जितनी भी तरक्कियां वगैरह जो भी हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम कुरान को समझे, हदीस को समझे, हमारा ईमान खालिस हो और उसमें मजीद बेहतरी आए, वो तमाम ये अल्लाह ताला की बरकतें हैं हम पर। अमाल में बरकत का मतलब है कि उनकी कबूलियत, उनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना और बढ़ना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक भी बनाए। आले मोहम्मद को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीका पर चलने वालों को, यानी कि औलाद के लिए भी दुआ कर दी गई और खानदान वालों के साथ साथ एतबा करने वालों के लिए भी दुआ कर दी गई। बाकी तमाम अल्फाज वही हैं, ठीक है, जो हमने पहले हिस्सा में पढ़े। सिर्फ बारिक था, बरकत अता फरमा, उसको हमने देख लिया। अब इसमें भी है कमा, वैसे जैसे हमने पीछे देखा कमा सल्लैता है, अब कमा बारकता, ठीक है, इसमें अंता है कि बरकत अता की तूने। पहले हमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस तरह से रहमत भेजे जैसी रहमत फरमाई थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब उसी तरह से बरकत की दुआ कर दी गई कि जैसी बरकत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई, उसी तरह से बरकत की दुआ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं। ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ़अला का टेबल, तो उसमें आप देखिएगा फ़अलता, बारकता, इस तरह के हम जितने भी अल्फाज इनको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जो एक स्लाइड है इसको बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कहीं के, ये जो चीजें हैं सल्ली, सल्लैता, बारिक और बारकता, इसमें ये जो हम अफ़आल पे इन चीजों को कहाँ कहाँ पर फिट करेंगे और इसके माना आप और फिर अच्छी तरह से याद रख सकेंगे। अब इसमें रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी और जो बरकत है उसमें आपने क्या याद रखना है, खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना। ये अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपने याद रखना कि सल्ली में कौन कौन सी बातें हैं। रहमतों की बारिश की बात की गई, मेहरबानी की बात की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और दर्जात की बुलंदी की बात की गई, यानी कि 4 बातें हमने याद रखी। इसी तरह से हमने खूबी, भलाई, नेमतों का बढ़ना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना, इसको हमने बारिक यानी कि बरकत से याद रखना है। बाकी तमाम अल्फाज वही है जो हम देख चुके हैं पहले भी, और यहाँ पर भी ये तमाम जो मुख्तसर शरह है ये भी वही है, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करते हम, इसकी भी तमाम तफसील ऊपर गुजर चुकी है। अच्छा जी, बारकता का मतलब बता दीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। बारकता, आप ए तूने आपने बरकत की, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ और क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी जब आपको बताया ना एक से ज़ायद जवाब है, तो इसका अक्सर मतलब यही होता है कि तमाम जवाब सही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोहब्बत भी रखनी चाहिए, दावत को भी फैलाना चाहिए, तबाह भी करनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़नी चाहिए। चलिए जी, दुरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद बताती है कि अल्लाह कौन है, मेहरबान है, काबिल तारीफ है, अजमत वाला है, या फिर इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है? कोई भी जवाब नहीं है, बुजुर्गी वाला जवाब था।
बुजुर्गी वाला है, और उसको ये देखिए अजमत वाला, और ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि सबसे बेहतरीन अजर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दे सकते हैं ना, तो उसका लफ्जी माना है बुजुर्गी वाला, लेकिन अगर उसका मफहूम पूछा जाए, उसकी जो सिफ्त पूछी जाए, अब ये देखिए यहाँ पे तर्जुमा नहीं पूछा गया, ठीक है, सिफ्त अल्लाह ताला की सिफ्त बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अजमत वाले हैं और सबसे बेहतरीन अजर देने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। चलिए जी, ये एक अजाफी दुआ है, ये मतलब ये जो एशियन लोग हैं ना, ये ज्यादातर हम लोग नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं, क्योंकि तमाम जो मुसलमान हैं हर तरफ के आप देखें, वो जरूरी नहीं कि ये दुआ पढ़ें, मजीद दुआएं भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने इजअलनी भी पढ़ा था, रब्बी हम पढ़ चुके हैं, इजअलनी अब जरा कोशिश कीजिएगा कि इसका तर्जुमा मेरे साथ कीजिएगा। रब्बी, कोशिश करिए जी, नीचे लिखा भी हुआ है लेकिन जरा थोड़ी सी आप खुद भी कोशिश कीजिए। रब पढ़ चुके, हम इजअलनी पढ़ चुके। चलिए जी, कोई भी कोशिश करने के लिए रेडी नहीं है, तो चलिए जी हम देख लेते हैं। रब, मेरे रब, हाँ जी, इजअलनी भी हमने किया था, बना दे मुझे, बना दे इजअलनी, हाँ जी, ये हमने जो वुजू की दुआ पढ़ी थी ना उसमें किया था। अब जो मुकीम है ना, मुकीम, मुकाम, कायम रहने वाला, ये उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, इनके मानी है जिनके नमाज खड़ी होना, नमाज कायम होना। अस्सला भी हम पढ़ चुके हैं, अस्सला नमाज, ठीक है, बा भी पढ़ लिया, मिन भी पढ़ लिया, मीन भी तर्जुमा पढ़ करके लिया, जाए, ठीक है, मीन से जुर्रियाती, हाँ मेरी जी, औलाद, हाँ जी, और आज हम उर्दू में भी कहते हैं जुर्रियत जो होती है, ठीक है। रब्बाना भी हमने पढ़ा था, ए हमारे रब, बा हमारे पढ़ रब, लिया, ठीक है। तकब्बला जैसे और कबूल कर, ये कबूल उर्दू की कर, तरह, ठीक हो गया। दुआ, दुआ भी हम उर्दू में यूज करते हैं। इसी तरह से रब्बाना, ए हमारे रब, इग़फिर ली, बख्श इग़फिर और दे ली, मुझे, बख्श वली दे मुझे वालिदैया, और मेरे वली वालिदैन। वालिदैया। अब इसमें जो हम वालिद लफ्ज भी यूज करते हैं, अब ये दो के लिए वली वालिदैया यूज हुआ। वलिल मुमिनीना, और वलिल मोमिनों के मुमिनीन, लिए, ठीक है। यौमा, यौम भी पढ़ा हमने, दिन, दिन, अच्छा जी। अब जैसे था मुकीम, इसी तरह से यकूम, ये मिलते जुलते जो इनके ना रूट लेटर्स एक जैसे होते हैं, फिर ये कायम अल्फाज होने वाला, चला हम समझ जाएंगे ये कैसे बन जाते हैं। अल हिसाब, हिसाब, तो क्या जी, हाँ। अब ये कि आपने ये वर्कबुक में शायद इसका ना हो, लेकिन आपने इसकी जो तमाम चीजें पढ़ी, इसमें आपने अस्मा ढूंढने के, अस्मा कौन कौन से यूज में, ठीक है क्या जी, ये आप इसको एज अ प्रैक्टिस ले लें, अपने असाइनमेंट के तौर पे इसको ले लें कि इसमें से कौन कौन से जो अल्फाज है वो अस्मा है, इसमें हरूफ भी मिल जाएगी आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको कर लें, फिर और अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। चलिए जी, पानी शानी पीना है तो पी लीजिए, फिर हम इसको ग्रामर पार्ट के लिए करते हैं। या अगर आपका कोई क्वेश्चन है दुरूद शरीफ के बारे में, दुआ के बारे में, तो पूछ लीजिए, वरना हम अगले ग्रामर पार्ट पे चले जाएंगे। चलिए जी, आज हमारा जो लेसन है 9B में, वो है फेले माजी के बारे में। हमने कहा था कि अफ़आल में किसी काम का करना या होना पाया जाता है, और साथ ही इसमें जमाना भी पाया जाएगा। अब जमाना क्या है, ये माजी का हम उर्दू में समझते हैं, माजी किसको कहते हैं, जो गुजर गया, जो हो गया, जिसमें शक नहीं है, जिसको बदला नहीं जा सकता, फेल माजी। फेल माजी के जो हम आज कुछ करेंगे सीखे, वो है फ़अला, फ़तहा और जाअला। अब ये जो है इनके इशारे कैसे करेंगे, जैसे हमने किया था हुआ और हु, ठीक है, जैसे लहू, इसी तरह से हमने किया अलैहि। अब ये जो हमारा पहला इशारा होगा, फ़अला, फ़तहा, जाअला, ठीक है। फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। फ़अला यानी कि उसने किया, बस कर दिया, खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है। फ़तहा उसने खोला, खोल दिया दरवाजा या किताब, जो भी मस्जिद, जब उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, ठीक हो गया जी। अब ग्रामर हमने कैसे करनी है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। हम हर बार ये स्लाइड देखते हैं कि अल्फाज की कितनी अकसाम है। इस्म किसे कहते हैं, दो बातें याद रखनी है, किसी का नाम हो या सिफ्त हो, अरबी में दोनों के लिए इस्म एक ही कैटेगरी है। आज हमने अफ़आल पढ़ने हैं, फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को, और इसमें जमाना भी पाया जाए। और हर्फ हमने सीखा था कि इस्मों और फेलों को आपस में मिलाते हैं, यानी कि ये जो हमने
3 कैटेगरी में इसको अलग अलग किया, हर एक में हमने 2-2 चीजें याद रखनी है, ठीक हो गया। जो हम इससे पहले कर चुके हैं टेबल, जैसे लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम और मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। और इसी तरह से हमने हरूफ जर में मजीद किए थे, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। इसके बाद हमने किया था आखिरी जो हमारा हरूफ जर था इला था, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। और उसके बाद हमने जो मा और इंदा किया था तो उसे हमने कहा था ये अस्मा है, लेकिन ये कुरान पाक में यूज हरूफ की तरह हुए हैं, तो इसको आपने अलग रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाए, कोई भी आपको 3 अगर आप हरूफ दे दिए जाते हैं उसके साथ मा या इंदा दे दिया जाए तो आपने उसको अलग कर देना, वो क्राइटेरिया उसमें आ जाएगा कि ये जो हरूफ है और ये जो मा और इंदा ये इसमें, ठीक है। माहू, माहू, माका, माई, माकुम, माना, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। यहाँ पर हमारे जो हरूफे जर थे ये 7 हमने कंप्लीट किए। अब आप मुझे बता दें कि अंता व रब्बुका, व रब्बुका क्या माना बनता है इसका? इशारा में आपके सामने करें, अंता व रब्बुका। अगर आप इसमें जवाब देना चाहते हैं चैट बॉक्स में तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो अनम्यूट करके बता दिया करें। अंता व रब्बुका, सी, तुम और तुम्हारा रब। सी, ठीक हो गया जी। ली, अच्छा जी, ली वाला का, 1 फिंगर से अपनी तरफ इशारा, फिर सामने की तरफ इशारा, ली का मना कर लीजिए, फिर वाला का कर लीजिए। डी, डी, मेरे अच्छा, लिए और तुम सब ले तुम्हारे और मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, ठीक है। लका, ली मेरे लिए, लका तेरे लिए या आपके लिए, ठीक है। इसको हम आपके, आऊज़ु बिर्रहमान का तर्जुमा कीजिए। हमने आऊज़ु भी पढ़ा, बी भी पढ़ा, रहमान भी पढ़ा। बी, मैं अपना मांगता हूँ बड़े हाँ मेहरबान। जी, हाँ जी। अब इसका हम इंशाल्लाह सीख लेंगे कि ये आऊज़ु का 2 तर्जुमे हम कैसे बना देते हैं, ठीक है। ये अगले इंशाल्लाह, ये जब अफ़ाल शुरू में इसमें इसी में हमने सीख लेना है। फेल कहते हैं वर्ब को, और जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं वर्ब, उसमें अक्सर, सारे नहीं, अक्सर जो अफ़ाल है वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, जैसे फा, आइन, लाम, फा, ता, हा, नून, साद, रा, दौद, रा और बा। अब इस तरह से जो 3 इनके रूट लेटर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर जो अफ़ाल है वो 3 हरूफ से मिलकर ही बने हैं, 4 पर भी है, 5 पर भी है, लेकिन वो थोड़े हैं। तो हमने जो सीखना, जो हमने कुरान मजीद में ज्यादा बातें जो यूज हुई हैं या जो ज्यादा अल्फाज आए हैं, ये जो हमारा कोर्स है इसमें जो ज्यादा कोशिश की गई है वो ये कि कुरान मजीद का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम समझ सके और आसान लफ्जों में समझ सके। अब आगे मजीद जो फेल की किस्में हैं वो है 3, फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। अब इसमें मजे की बात यह है कि इसमें फ्यूचर और जो प्रेजेंट है वो दोनों शामिल हैं, जो हम उर्दू में करते हैं ना, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, इसमें अब दोनों चीजें शामिल है। और हमारी जो 3rd कैटेगरी थी फेल अमर, फेल अमर कहते हैं किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना। जैसे अब आप देखिएगा, पहले आप अपने टेबल्स को जो हमने पहले किए ना उनमें आप ये जो ज़माइर मुत्तसिला करते थे, जैसे हमने किया था लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, ठीक है। अब हमने जब फेल माजी पे आना है, अब ये जो ता वाला ये तो हमें समझ में आ गया कि जो अंता की जगह हम फालता कर लेंगे। अब ये जो था तुम था तो हम फाल तुम कर लेंगे, फाल ना था, सॉरी जो ना था उसके लिए हम फाल ना कर लेंगे। तो अब ये जो एक चीज बच गई है पीछे वो है टू। अब ये टू क्या है इसको समझते हैं। अच्छा जी, पहले मुझे जल्दी से बता दें कि अरबी जुबान में अक्सर अल्फाज कितने हरूफ से मिलकर बने हैं? 2, 3, 3 से, अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا جی یہ بتائیے ماضی کیا؟ جو ہو چکا، یا جو ہو رہا ہے، جو کیا جائے گا، جو بھی کرنا ہے؟ ہو چکا. جو ہو چکا. الحمدللہ. اب ہم نے سیکھنا ہے، سب سے پہلے ہم تھرڈ پرسن کے اشارے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے فعلا. اب یہ جو فعلا ہے نا، اس میں آپ کا ہوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہوا فعلا اس نے کیا. آپ صرف بولیں گے فعلا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. اب آپ اس کو دیکھیے، اس میں ہم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوا ہم، فعلا فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اسی طرح سے جب ہم ان کے آنسر کریں گے، جیسے ہم کہیں گے ہوا کا جواب ہوا سے تھا، ہم کا جواب ہم سے تھا، سیم اسی طرح سے اب یہ ہماری ساری جتنی بھی ترتیب چلے گی وہ یہی ہوگی. ہل فعلا، نعم فعلا، ہل فعلو، نعم فعلو. اس کے بعد جو ہم اگلا جہاں سے ہماری اور آپ کی بات شروع ہوتی نا، وہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ فعلتا، انتا کی طرح فعلتا. اب یہ جو تبدیلی آئی ہے اپنی طرف، پہلے ہم اس میں جی کرتے تھے یا اس میں ہم نے جو کیا تھا انا، اب یہ بن جاتا ہے فعلتو. ٹھیک ہے، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو. یہ ہم اس کو اتنا کریں گے، ریپیٹ کریں گے بار بار کہ انشاءاللہ یہ ہمیں یاد ہو جائے گا. اس کی جو مثال آپ ایک سمجھ لیں، اس کو یاد رکھ لیں کہ آپ کہیں فالتو، جیسے فالتو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، نیک کام کیا، جو بھلائی کا کام. فعلتو میں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اب دیکھیے گا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اب آگے دو جو ہیں وہ آسان ہے، جیسے انتم کا فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے لنا کیا تھا یا ہم نے انا کیا تھا، اسی طرح سے فعلنا ہم سب نے کیا. اب آپ دیکھیے ہم نے جو کیا ہے آج لیسن میں، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، بارکتا برکت بھیجی تو نے. اب دیکھیے ہمیں افعال کی اس طرح سے بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جو صرف ایک جو تا ہی ہے اس کے اوپر زبر لگی تو آپ والا ترجمہ ہو گیا، زبر کو ہٹا کر پیش لگا دی گئی تو اپنی طرف اشارہ ہو گیا. اور ابھی ہم جو انشاءاللہ اگلے لیسن میں سیکھیں گے کہ جب اس پہ جزم آ جاتی ہے اس کا ایک اور معنی بن جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ جو نمونہ ہے، یہ جو فعلا ہے، فعلو ہے، یہ سارے نمونے اس پر 9000 اور یا پھر ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب پھر اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ کا جواب یہ سے کرنا تھا، اب ہم تا کا جواب تو سے کریں گے. ہل فعلتا، نعم فعلتو. اور ہم نے کہا تھا تم کا جواب نا سے، یہ آسان ہے، ہل فعلتم، نعم فعلنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی کہ ہو کا جواب ہو سے تھا تو فعلا کا جواب فعلا سے، فعلو کا جواب فعلو سے، فعلتا کا جواب فعلتو سے، فعلتم کا جواب فعلنا سے. اب یہ تمام میں کوشچن بولتی ہوں تو آپ ذرا انمیوٹ کر کے اس کے آنسر کیجیے گا. ہل فعلا، نعم فعل، ہل فعلو، نعم فعلو، ہل فعلتا، نعم فعلتو، ہل فعلتم. نعم فعلنا. اوکے جی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر. اب آپ نے یہ جو یاد رکھنی ہے بات وہ کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک ایروپلین جا رہا ہے، جا چکا ہے، ماضی ہو گیا. اب آپ کو اس کی صرف ٹیل نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کڑے آپ کے سامنے سے جہاز گزر گیا. اب یہ جو گزر گیا ہے اب یہ دور جا رہا ہے تو آپ کو اس کی صرف ٹیل نظر آ رہی ہے. اب فعل ماضی میں ہم نے کیا کرنا ہے، فعلا ہمارا وہ جو اوریجنل ہے یا یہ جو اس کے والا سیگا ہے، اس پہ ہم نے نیکسٹ جو تبدیلیاں کرنی ہے وہ دم پر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب فعلا کے آگے ہم نے واو الف، تا زبر کے ساتھ، تا پیش کے ساتھ، تم اور نا کی تبدیلی کرنی ہے. یہ اس کی تبدیلیاں ہیں جی. واو الف جمع کا، ٹھیک ہے، جو ہمارا تھرڈ پرسن کا تھا. حاضر کے لیے تا تم، اور جو ہمارا متکلم کا ہوتا ہے واحد اور جمع میں دیکھیے تو اور نا ہے. اس ٹیبل کو ہم ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا. ایک بار پھر دہراتے ہیں. فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا.
अब मैं चाहूंगी कि आप में से कोई इसको दोहराए, मैं इशारे करती हूँ और आपने इशारे खुद भी करने हैं। कोई भी एक सिस्टर अपने आप को वॉलंटियर कीजिएगा और करें फ़अला इसको। फ़अलु फ़अला फ़अलु फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अच्छा जी, फ़अला इसकी जमा बताइए कौन सी है? हमने कहा फ़अला और हम जब 4 उंगलियां खोली तो हमने क्या इसका तर्जुमा किया? सॉरी, इसके लिए हमने कौन सा सीगा इस्तेमाल किया? फ़अलतुम। अच्छा जी, अभी हमारे थोड़े से कच्चे हैं ना, तो इसलिए इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप याद रखें फ़अला फ़अलु, ठीक है। फ़अलु आप इसको हाँ, आप इसके जी, आप इसके ना सेट की तरह भी कर लें। अब आप देखें जैसे यहाँ पे कलर है ना, इस कलर के हिसाब से याद कर लें। ये जो एक कलर में है इनको इकट्ठा याद कर लें, इन दोनों को इकट्ठा याद कर लें, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ियां बना लें, ठीक है। फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना। फिर अब ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमने जवाब भी ऐसे देने ना, फ़अला का जवाब फ़अला से, फ़अलु का फ़अलु से, फ़अलता का जवाब फ़अलतु से, फ़अलतुम का जवाब फ़अलना से। ठीक हो गया जी। अब है मन। मन हमने पढ़ा, मन का माना था कौन, फ़अला करता है, यानी कि कौन करता है, हाजा ये। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा शायद आपके लिए हो मुश्किल, तो इसको हम स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं, ये हमारा जो पहला सेट है उसमें होगा फ़अला, सेम उसी की तरह फ़तहा, ठीक है, और उसी की तरह से उसी पैटर्न पर जअला। फ़अला का मतलब उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। अब आपने ये माना भी याद रखने हैं, ये जो आपको साथ साथ बताए जाते हैं, और आपने एक चीज जो अहम तरीन याद रखनी है कि ये जो हमारा पहला सीगा है फ़अला, इसमें हुआ छुपा है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे सीगे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे फ़अलु है तो हुम छुपा हुआ है, फ़अलता है तो अंता छुपा है, फ़अलतु में अना छुपा है, और इसी तरह से फ़अलतुम में अंतुम छुपा हुआ है, और फ़अलना में नहनु छुपा हुआ है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से अब आप जाला को जाली नोट उर्दू में कहते हैं, या जाल साजी, उससे याद रख ले कि जिसने जाली नोट बनाया। अब बनाने का तर्जुमा आपको इससे याद रह सकता है। आप और भी जो मतलब आपको आसान लगे, कोई फ्रेज इसके साथ जोड़ ले, कुछ भी आप इसको इनके माना को याद रखने के लिए बना लिया करें। अब हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि इसको हमने इस सीखे को, ये जो जाला है, इसको हमने फ़अला पर कैसे उतारना है। आप फ़अला, ये मेन टेबल है हमारा, ये हर टेबल में हम ये जितने भी टेबल हम करते हैं, हम अगले क्लासेस अगले कोर्सेज में जाते हैं, हम फ़अला का जो हमारा टेबल है इसको मेन टेबल कहते हैं, ठीक है। अब देखें, फा की जगह जीम को ले आए, आइन की जगह आइन आ गया, लाम की जगह लाम आ गया, यानी कि ये फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। इसका मतलब हो गया, इसने किया, जाला उसने बनाया, फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया। अब इसका भी इशारा ऐसे ही होगा, जाला उसने बनाया। ठीक हो गया जी। अब ये जो तब्दीलियां हमने देखी थी, देखें फ़अला, फ़अलु, फ़अल, 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 ये जो पहला वाला सीगा है ये तमाम की तमाम सीगों में मौजूद है। तब्दीलियां कहाँ हो गई? तब्दीली हुई जो हमने जमा का सीगा बनाया, थर्ड पर्सन का फ़अलु, फिर इसके बाद फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ये जो ब्लू कलर में आपको बताई गई, हाईलाइट की गई, ये तब्दीलियां, ठीक है। तब्दीलियां कहाँ हुई? ये एरोप्लेन की दुम पर तब्दीलियां हुई, और ये माजी है, इस बात को भी याद रखना। ये जो हमने किया इसका तर्जुमा भी हमने माजी का करना है कि फ़अला उसने किया, बस काम खत्म हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अब सेम उसी तरह से हम कर लेते हैं जाला। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। अब इसको भी आप इसी तरह से दो दो बॉक्सेस जो कलर्ड हैं, एक कलर उसमें उसको उसी तरह से बोल के देख लिया करें। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। और इसी तरह से हमने कहा था हुआ का जवाब हुआ से, तो अब फ़अला का जवाब फ़अला से, इसी तरह से सेम उसी तरह से जाला का जवाब भी हमने जाला से ही देना है। जैसे हल जाला, तो आप क्या आंसर करेंगे? नाम जाल, अल्हम्दुलिल्लाह। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू, नाम जालू। अच्छा, अब बनाया में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे उसने तर्जमा बनाया या उसने खाना बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है। जाला उसने बनाया और उन सब ने बनाया, ये उसी तरह से आ जाता है, ठीक है। अब इसका पूरा टेबल भी देख लेते हैं, और इस तरह के ये जो अल्फाज है जाला और जालना तक, ये
233 मरतबा कुरान मजीद में यूज हुए हैं पहले माजी में से। अभी हम जब इसका मुदारे करेंगे तो वो अल्फाज इंशाल्लाह और मजीद शामिल होंगे। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक हो गया जी। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। एक मरतबा और करते हैं, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। आप भी कोशिश किया करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि इंशाल्लाह आपको एक के बाद दूसरा सीखा फौरन रवानी की तरह आपके जुबान पे जारी हो। ठीक है। हल जाअला आंसर कीजिए, अनम्यूट कीजिए, खुद को आंसर कीजिए। हल जाअला, नाम जाला, हल नाम जाअलू, जाला, ठीक हो गया जी। हल नाम जाअलू, जालू, नाम हल जालू, जाअल, हल जाअलता, नाम नाम जालू, जालतू, हल जाअलतुम, नाम जालना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जाला का माना हमने देखा, उसने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, और इसी तरह से वा जालू और उन सब ने बनाया। ठीक हो क्या जी। इसी तरह से जब हमने कहा कि ता का जवाब तू से देना, हल जालता तो नाम जालतू। अब उसी तरह का एक और हम टेबल करते हैं, आपका होमवर्क है, लेकिन इसको एक मरतबा मैं आपके साथ कर देती ताकि इंशाल्लाह आपको इसमें रवानी भी और समझना भी आसान हो जाए। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। एक बार फिर करते हैं, फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। ठीक हो गया जी। यानी कि उस और आगे जो आपका जो भी सीगा है, जैसे उस, उन, आप, मैं, आप और हम, ये अल्फाज वही रहेंगे और जो काम है वो भी वही रहेगा। जैसे उसने खोला, उसने बनाया, उसने किया, उन सब ने खोला, उन सब ने बनाया और उन सब ने किया। यानी कि सिर्फ आपकी जो काम की तब्दीली होगी, जो भी आपने काम किया, बाकी आपके सीगे और जो आपकी रवानी है, जो तब्दीलियां, वो उसी तरह से रहेंगी, उसमें कोई और चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप इंशाल्लाह जब आप कर ले फिर अगले में हम आपसे पूछेंगे। चलिए जी, नुक्ता तालीम यानी कि छुट्टी का टाइम हो गया। आपने वो सारी बातें याद रखनी है कि आपने अपने होमवर्क करने हैं, तिलावत भी करनी, यानी कि ये पहले है, ये जो हमारे गूगल के होमवर्क ये आसानवी बातें हैं। ठीक है। जो मेन मकसद है कुरान को समझने का, मुसहफ खोलिए, उसमें से ये जो जितने भी अल्फाज पढ़े हैं इनको ढूंढने की कोशिश किया करें। ढूंढने में भी आपको कोई ऐसी खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप मुसहफ को खोलेंगे ना, किसी भी पेज से ऐसे ऐसे करके खोल लें, आप इसको जहां से रैंडमली दिल करता खोलें, आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो हम पढ़ चुके मिल जाएगा। अब इसमें से मुझे मिल गया, जैसे वा मिल गया, आला मिल गया, हमने शैइन पढ़ा था वो मिल गया, यौम मिल गया, इसी तरह से हुम, और इसी तरह से इल्ला, ला इलाहा इल्ला हमने किया था, और हाँ, ये इस तरह से जब हमें मिलती है ना चीजें, खुशी भी बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरा हमारा था होमवर्क, यानी जो हमने अपने हाफिजे से करना, अन अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह इन्ना शराइअल इस्लामी कद कसूरत अलैया फअख़बिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही क़ाला ला यज़ालु लिसानुका गतबन मिन ज़िक्रिल्लाहि। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो जिक्र अज़कार भी करते रहिए, नमाज, कुरान पाक पाबंदी से आप कोशिश कीजिए, और एक और जो आपने काम करना है, कुरान मजीद को बाआवाज पढ़े, यानी कि कम से कम इतनी आवाज में पढ़े कि आप अपने ये जो कान सुने, ताकि आप वसवसों से दूर रहे। जब हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तो एक तो गलती जो हम कर जाए कोई ना कहीं वो समझ में आती है, और ये कि वसवसे भी नहीं आते जो ख्याल आप दिल में, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर करेंगे, जिक्र करना भुला देंगे। तसव्वुर कीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं, दिल में अल्लाह ताला का जिक्र है, आपके पास से कोई गाड़ी गुजरती है, आपका ध्यान फटाफट उस तरफ जाता है, और ये है, ये हकीकत है।
اور شیطان آپ کو ذکر سے روکتا ہے. لیکن اگر آپ بول رہے ہوں گے نا زبان سے ذکر ہوتا ہے, وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی خلل فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے, مگر یہ جو آواز ہے نا تلاوت میں یہ آپ کی چلتی رہتی ہے, یہ پھر آپ کو واپس اپنی جگہ پر لے آتی ہے. یعنی کہ ذکر اور تلاوت کی طرف آپ واپس آتے ہیں. اور یہ جو زبان ہے زبان تھکتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ہاتھ تھک گئے, پاؤں تھک گئے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا میری زبان تھک گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے نہ زبان کبھی تھکتی ہے. یہ دیکھ لیجئے آپ بات آ گئی, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا میری زبان میں درد ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے میموری یعنی کہ حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت کرنی, چلتے پھرتے یا کاموں کے دوران آپ تلاوت جو آپ کو یاد ہے حافظے سے پڑھ لیجئے. اور الحمدللہ سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے 102 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 27,926 مرتبہ آئے ہیں. یعنی ہماری 30,000 کی بات عبور ہونے والی ہے, کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب ہمارا تھوڑا سا یہ ٹاسک رہ گیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلی جو کلاسز ہیں, آج ہماری 9ویں کلاس تھی, اگلی ہم نے باقی کی جو 12 کلاسز میں انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے. اس میں سے بھی 2 کلاسز ایسی ہیں جس میں ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا اور یہ پھول بھی آپ کا ہوا. الحمدللہ آپ کا بکے بھی تیزی سے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھ رہا ہے, آپ کا بکے بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا تیار ہو رہا ہے. آپ اپنی بکلیٹ یہ جو آپ کا ووکیبلری کارڈ ہے اس سے بھی آپ دیکھا کریں, پڑھا کریں. اور یہ سب جو ہم نے سیکھنا ہے یہ ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی آپ نے سیکھی ہو. یعنی یہ فرض ہے ہمارا, جو ہم سیکھتے ہیں ہم نے سکھانا ہے. اگر آپ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.